Hello everyone. Today we are going to discuss the next topic, which is about fourth chapter of business service, business studies subject ka fourth chapter business services. In that last time we discussed fire insurance, marine insurance. Okay. Then after उसके बाद का topic postal services, transportation and warehousing services. Okay. These are the last three topics which are left in this chapter. Then after we move to next fifth one. Okay. So now postal services. We are going to start from the postal services. You know very well what is postal services. Post offices are the part of government organization and which is centrally organized or will be under the central control of the government. तो जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम थ्रू अपॉइंट होते हैं, वो हमने आगे देखा था. नाउ व्हाट आर दी एक्टिविटीज़ एंड विच काइंड ऑफ रोल द पोस्ट ऑफिसेस आर प्लेइंग in our economy, in the service sector itself. So postal services are like that. Whenever I am writing a particular letter to X particular party and by post the same particular letter will reach to the same party on the particular address. तो पहले ये था, आज तो अब फोन आ गया है, ईमेल है. ओके. सो अगेन टिल डेट इम्पोर्टेंस जो है उसका कम नहीं है. टिल डेट उनका एक्टिविटी जो है वो डाइवर्ट हुआ है. पहले नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स थे, नंबर ऑफ कार्ड्स थे, नंबर ऑफ बिजनेस लेटर्स थे. नाउ वो सब कम हो चुका है बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड more means of communication are entered in the market. That is why. But now new kind of services are provided by the post itself. So one by one we are going to discuss which kind of services all that. Under postal services. Under postal services are the services which are provided, the certificate provided by the post office about the confirmation and proof of the particular important letter which is dispatched and which is hand over to the particular party. जब भी कोई secret ऐसा document वगैरह होता है which is the most important to hand over at that time, and if you want to a particular proof that ki wo on so and so particular date this document was reached to that person, so at that time ye services use hota hai under postal services. Under postal services kya hai? Say for example I am sending a particular document in a card, in a postal card, and I want that the same particular person will receive, he make a sign and I will get a particular certificate that as per your condition the so and so particular letter received by so and so person. In return I am getting certificate of that. It is the under postal services. Then registered post. Registered post and these services somehow different. Process वही है लेकिन somehow different है. वो क्या है? Under registered post, whenever a particular cover is there, I am going to register this. मैं उनको वहाँ पे बोलूँगा कि मुझे register ID करना है. So immediately एक कार्ड मुझे मिलेगा, सिक्का उसके ऊपर लगेगा, एक कार्ड मुझे मिलेगा. On that particular card I will write my address. वो कवर पे तो वो सामने वाली पार्टी का एड्रेस होता है. इस कार्ड पे
I am going to write my address and रजिस्टर रेडी करके वो डाल दूंगा. Then after, as and when the particular party will receive the same cover, तो वो कार्ड जो है उसके ऊपर वहाँ की पोस्ट स्टैंप लगाएगी. स्टैंप लगा के डायरेक्टली मुझे मेरे पते पे वो कार्ड वापिस मिलेगा. It indicates that so and so person already received this. Is it clear? तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्स के अगर डॉक्यूमेंट है या तो फिर बैंक का कोई ड्राफ्ट वगैरह है, एंड इफ ड्यू टू सम रीजन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर मिसप्लेस हो गया, देन व्हाट, तो उसका प्रूफ जो है वो मुझे मिलता है. दैट इज व्हाई दिस इज द रजिस्टर्ड पोस्ट. कोई सर्टिफिकेट नहीं होता इन दैट, उसमें बाय माय हैंड राइटिंग जो मेरा एड्रेस है उस पर वो वापिस आ जाएगा. ओके, रजिस्टर्ड पोस्ट कंप्लीटेड. देन पार्सल. पार्सल्स आर ऑल्सो यू कैन सेंड बाय पोस्ट. वेट पे होता है, बिलो सो एंड सो पर्टिकुलर वेट का पार्सल जो है आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जो है वो भेज सकते हो, एंड you will be charged some particular amount on that. Then speed post. It's very famous, very easy to understand. Whenever you want to send a particular document within a stipulated time period, at that time speed post is the most important. Speed post में क्या होता है कि भाई within 1 or 2 days इंडिया लेवल पे कहीं पे भी जो है आपका जो है वो सिस्टम थ्रू दैट विद इन टाइम बाउंड मैनर मिल जाता है. से फॉर एग्जांपल टेंडर अगर किसी को भरना हो तो टेंडर का डेट हो, तो टेंडर के डेट में क्या होता है, स्पीड पोस्ट फैसिलिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो वो लोग वो स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं. और स्पीड पोस्ट में जो है वो जनरली जितने भी टाइम में पहुंचता है उससे लीस्ट पॉसिबल टाइम इट विल टेक टू रीच योर लेटर. देन आफ्टर courier. This is also one kind of services. Courier services are generally provided by the private owners. Private entrepreneurs are also enter in courier services. The same way ऐसे ही होता है, but privately it is operated and it will be charged little more amount per cover. थोड़ा ज्यादा चार्ज लगता है इसके ऊपर. समझ में आया? थोड़ा ज्यादा चार्ज लगता है और आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड ट्रस्ट वर्दी सिस्टम डेवलप करता है. ऐसे फॉर एग्जांपल मारुति कुरियर, बालाजी कुरियर, ओके, दीज ऑल आर द अवार्डेड, एंड फर्स्ट फ्लाइट कुरियर, ओके, दीज ऑल आर द कुरियर सर्विसेज व्हिच आर अवार्डेड फॉर. वो पार्सल भी जो है पार्सल के ऊपर भी चार्ज लगाते हैं, एंड दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन कम्युनिकेशन. ओके, द नेक्स्ट अदर सर्विसेज. Which other services are provided by the post? So that is the financial services. Financial services means which kind of services? अब तो क्या है, the role of the post offices are changed from post offices to bank. ये बैंक बन जाएंगे, because number of lower class people are investing their savings with the post office. Rich class also, they are having number of other plans as like insurance companies, pension plan होता है, savings का plan होता है, number of enormous plans are there. Okay, and that financial services are provided by the post office. So that what happened, ये गवर्नमेंट का ट्रस्टवर्दी सिस्टम है, सेंट्रली ऑपरेटेड है, एंड आपका पैसा कहीं पे डूबेगा नहीं. दिस इज वन काइंड ऑफ ट्रस्ट. अनदर थिंग इज व्हाट, कंपैरेटिवली बैंक, द पीपल विल गेट मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट.
के इन्वेस्टमेंट पे उनको ज़्यादा पैसा रिटर्न मिलेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स से। देन इंश्योरेंस एज आई डिस्कस राइट नाउ, LIC की कंपटीशन में पोस्ट में बहुत सारे इंश्योरेंस के प्लान भी है। लाइफ इंश्योरेंस, नॉट व्हीकल इंश्योरेंस, इज इट क्लियर? देन allied services. Allied services is like that greetings, then after business media post, that also provided by the पोस्ट ऑफिस। किस तरह से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, आई वांट टू मेक एडवर्टाइजमेंट, तो पोस्ट कार्ड होता है, पोस्ट कार्ड के ऊपर मेरा एडवर्टाइजमेंट छपता है, आई विल पे फॉर दैट, मुझे पोस्ट ऑफिस को पे करना है और मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो पूरे पोस्ट कार्ड के ऊपर छपेगा। इज इट क्लियर? एंड नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड जो है वो डिसाइड होता है that if you paid this much of rupees, then this much of number of postcard. On that your advertise will printed. Is it clear? So this kind of facilities they are providing. Sometimes also they provide services like to advertise your product. Metro cities में है. Then e-bill post. E-bill post and direct post both are the same. ई बिल पोस्ट यानी कि आप टेलीफोन एक्सचेंज का बिल जो है वहाँ पे कर सकते हो, समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आप पे कर सकते हो। डायरेक्ट पोस्ट सेम, समटाइम्स स्टैम्प परचेस करने के लिए भी पोस्ट ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि 100 रुपये का स्टैम्प, 500 रुपीज़ का स्टैम्प जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं वो, दैट ऑल्सो प्रोवाइडेड। देन आफ्टर पासपोर्ट फैसिलिटी डायरेक्टली सेंट्रल ऑपरेटेड है, तो पासपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ओके, देन IMT इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, यस इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय दी, इफ अगर यहाँ से USA पैसे भेजने हैं तो वो सर्विसेज लेस लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये पोस्ट ऑफिस भी यही सर्विस प्रोवाइड करता है। इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज ओवर एंड अबव दैट यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर डिस्कसिंग कि पोस्ट जो है वो दिवाली पे गोल्ड भी बेचता है, गोल्ड कॉइन्स भी वहाँ पे बिकते हैं। प्राइवेट ओनरशिप के साथ, रिलायंस के साथ टाई अप होके पोस्ट ऑफिस में गोल्ड जो है वो बिकता है, कॉइन्स। देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, transportation services are the most important. Say for example, if bulk quantity of goods are going to transfer from one particular city to another or one state to another state, at that time transportation facilities are the very common and it is easily available. ये एक ऐसा growing service sector है कि on which the number of other service sector are also depend। जैसे कि व्हीकल इंश्योरेंस का जो है उसके ऊपर डिपेंड है, then other insurance is also depend on this transportation industry। उसके बाद गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को भी RTO के जरिए बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। So likewise one particular sector supports number of other sectors and within a stipulated period of time supply chain country का बहुत ही अच्छा रहता है, so that the goods will be transported very easily from one place to another। तो business जो है, business में एक demand जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है economy में। Is it clear? So आज के टाइम पे transportation channel is the most important। Amazon जैसे काम करता है transportation के ऊपर, services के ऊपर। Is it clear? फ्लिपकार्ट ने तो ऐसा सोच लिया था कि हम हमारा ही एक सर्विस स्टार्ट करेंगे, फ्लिपकार्ट का एजेंसी बांटने का सोच लिया था, बट दे ड्यू टू सम रीज़न और अनदर दे ड्रॉप द आइडिया। वो एजेंसी देते थे, फिर उस वहाँ पे जो भी फ्लिपकार्ट के ऑर्डर्स होंगे वो वहाँ पे जाएंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बात खत्म।
इस काइंड ऑफ सर्विसेज दे डिसाइड टू, लेकिन जो है वो ड्यू टू रीज़न एनी और फ्लिपकार्ट जो है वो वॉलमार्ट ने खरीद लिया. ओके, प्रोसीड फर्दर. तो ट्रांसपोर्टेशन is the most important. Now the warehousing. Warehousing is what? Warehousing. Warehousing means कि finished goods जहाँ पे store होता है. Say for example, warehousing facilities are also provided by the government. If the grain is in huge quantity going to transport through the PDS, that public distribution system से बहुत सारा ग्रेन जो है वो एक जगह से या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास ऑन करना है, and it will take 1 or 2 days. So at that time government warehousing is the only option कि जहाँ पे पाइल अप स्टॉक जो है वो पड़ा रहता है. स्टोरिंग फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छा रहता है, एंड दे चार्ज फॉर 1 or 2 days फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज. इज इट क्लियर? दिल्ली में वो सर्विसेज है, कच्छ में है, बहुत स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में है, राजकोट में भी है. देन आफ्टर मार्केटिंग यार्ड also one kind, this kind of warehousing facilities they are providing. तो प्राइवेट वेयरहाउसिंग दिल्ली में बहुत सारे होते हैं. देन पब्लिक वेयरहाउसिंग आर ऑल्सो देयर, तो गवर्नमेंट ओन्ड होता है. देन बॉन्डेड जो है वो खास करके फ्रूट्स वगैरह जो है वो जहाँ पे रहता है, that facilities are known as, वलसाड में और गुजरात में, खास करके पूरे गुजरात में वलसाड जो है, वलसाड में और वलसाड से आगे सूरत, कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलते हैं. कश्मीर से जो भी एप्पल मोरबी के मार्केट में बिकते हैं, दे आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन अ कोल्ड स्टोरेज. कोल्ड स्टोरेज हमारे मोरबी में भी है यहाँ पे. आफ्टर ऑर्पेट ग्रुप का जो है वो फैक्ट्री खत्म होने के बाद ही राइट हैंड साइड पे आता है, अंदर के साइड है कोल्ड स्टोरेज. ओके, सो these are the facilities included in the warehousing. Government का warehouse, then cooperative. Yes, cooperative societies are also providing warehousing facility, and that particular is the marketing yard. Marketing yard में वो होता है खास करके. फार्मर्स को बहुत ही सस्ते से सस्ते दाम में वहाँ पे जगह नहीं होती, तो उनको स्टोर करने के लिए फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. दे चार्ज वेरी नॉर्मल अमाउंट. देन आफ्टर फंक्शंस. अब वेयर हाउसिंग में फंक्शंस, सम काइंड ऑफ फंक्शंस आर देयर. कंसोलिडेशन में खास करके कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट यानी इकट्ठा करना. तो ये आई एम गोइंग टू draw the figure over here. प्लांट ए, बी और सी यहाँ से निकल के, प्लांट ए और बी और सी में से जो भी कुछ निकलता है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सिडेट यानी कि पार्ट जो है, डिफरेंट पार्ट को यहाँ पे ए डिपार्टमेंट में डिफरेंट पार्ट को कंसोलिडेट करते हैं. कंसोलिडेट मीन्स इकट्ठा करना, क्लब्ड करना. ओके, एंड देन आफ्टर दे सेंड इट टू द नेक्स्ट लेवल. दिस इज कंसोलिडेट. ओके, देन आफ्टर break the bulk. Break the bulk is also some like that. तो पूरा प्लांट में से रेडी गुड्स निकलता है, एंड इट इज इन द, वी कैन से ये ह्यूज स्टॉक में होता है.
10,000 क्वांटिटी, 20,000 यूनिट्स का क्वांटिटी, समथिंग ऐसा कुछ होता है. एंड it will be divided into different small packets, 1000 यूनिट्स के पैकेट्स. से फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स का एक पैकेट आता है, उसमें से 1000 यूनिट्स के नॉर्मल पैकेट्स करके डिवाइड करके, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक द बल्क. देन stockpiling is very normal, very easy to understand. Pile up means what? एक के ऊपर एक दूसरा. Likewise, तो आपने गवर्नमेंट वेयर हाउस देखा होगा कि जहाँ पे गेहूं है तो गेहूं की गठरी जो है वो एक के ऊपर एक 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 करके बहुत सारी गठरियाँ जो है वो 25-25, 30-30 गठरियाँ जो एक के ऊपर एक करके रखते हैं. दैट इज कॉल्ड स्टॉक पाइलिंग के ऊपर. तो ऐसे बहुत सारे वेयर हाउस होते हैं. Then value-added services. Value-added services are also like जहाँ पे small parts जो है वो fix करके आगे भेजते हैं. That is called value-added services. Say for example assembling unit जिसको बोलते हैं. Assembling unit में क्या होता है कि एक particular इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट में एक या दो सिस्टम जो है वो प्लग इन करके पैकेट करके फिर पैक करके आगे जाने देते हैं. तो वो प्रोसेस जो है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज. देन प्राइस स्टेबलाइजेशन. समटाइम्स व्हाट हैपन दैट some particular goods have huge movement, price movement in the market. बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहता है मार्केट का. Sometimes what happens, the prices are very normal, flat हो जाता है. And if you hold for just 15 days, then you can get the tremendous good return. So at that time ये price stabilization, जब तक नॉर्मल प्राइस नहीं होते हैं तब तक हम बेचेंगे नहीं. एंड जब तक नॉर्मल प्राइस नहीं होते तब तक हम खरीदेंगे नहीं. लाइकवाइज कस्टमर और सेलर दोनों के बीच में ये एनालिसिस चालू रहता है, वायदा बाजार में होता है. सो दैट द प्राइस स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन को तब तक वेट करने के लिए, if the farmers will not have any kind of go down and facility at that time, this kind of warehousing are providing facility. And the financing also, sometimes financing facilities are also provided by the government. Warehousing. So I end up my discussion on this. Okay, up to this extent, if you doubt any, then you are free to give me a call. And ये हमारे 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो यहाँ पे 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. एंड आई थिंक जब भी कुछ टेस्ट वगैरह होगा, आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू थ्रू द मैसेज. एंड आई एम हार्टली वेरी सॉरी, अभी इसका जो है वो मैं अभी विद इन फ्यू मिनट्स आई एम गोइंग टू सेंड यू द PDF फाइल so that you can go through this. Okay, thank you very much. Take care of yourself. Thank you.